Hello everyone. Today we have a new problem which name is maximum sum problem. It's a GFG problem and easy problem. Let's see the problem statement. A number of n can be broken into three parts ny2, ny3, ny4. Consider only the integer part. Okay. Each number obtained in this process can be divided further recursively. Okay. So we have to use recursion here. So directly it is saying that we have to use recursion. Find the maximum sum that can be obtained by summing up the divided parts together. So note is it is possible that we won't divide the number at all. Okay. Okay, so let's take an example. So if n equals to 10, so n equals to 12, 12 can be divided as 12 by 2, 12 by 3, 12 by 4 because it is given that n by 2, n by 3, n by 4 में divide कर सकते हैं. So 12 by 2 कितना आएगा 6, 12 by 3 4, 12 by 4 कितना आएगा 3. So 6 plus 4 plus 3. Now इनको और भी further divide करेंगे अगर सब मेरा ज़्यादा आ जाता है, ठीक है. So let's take an example directly. If n equals to 24, so 24 can be divided into 24 by 2, 24 by 3, 24 by 4. So 24 by 2 कितना आएगा 12, 24 by 3 8, 24 by 4 6. Now further it will be divided to n by 2, n by 3, n by 4. So it will give me 6 4 3. The sum is 6 4 3 is 13 which is greater than 12. सो 13 वाले लेंगे ना क्योंकि भाई 12 से ज़्यादा आया है मेरे पास वो. यहाँ पे 12 आ रहा था और नाउ अगर फिर से उसको डिवाइड करते तो 13 आता है. अब इनमें से 6 को फिर से डिवाइड करेंगे एन बाई टू एन बाई थ्री एन बाई थ्री करके, फिर 4 को फिर से डिवाइड करेंगे एन बाई टू एन बाई थ्री एन बाई फोर करके. तब उसका भी सम फाइंड करेंगे अगर 13 से ज़्यादा आएगा. अगर आएगा वैसे आएगा नहीं, पर आप निकालना चाहो तो निकाल देना क्योंकि पूरा रिकर्सिव ट्री बनाना पड़ेगा, मैंने बनाया नहीं है पूरा. अगर आगे फाइंड करोगे ना उसका सम है ना जो भी नंबर आएंगे तुम्हारे पास उसका सम 13 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है. इसलिए मैंने डायरेक्ट 13 पे ही स्टॉप कर दिया. ऐसे 8 8 है यहाँ पे. 8 विल बी डिवाइडेड इन 8 by 2, 8 by 3, 8 by 4. सो 8 by 2 कितना आएगा 4, 8 by 3 2, 8 by 4 2. सो इसका सम कितना 8 जो कि 8 से ज़्यादा है नहीं, ठीक है. सेम एज 6 को भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे जो कि फाइनल सम आएगा 3 2 1 विच इज 6 जो कि अभी भी 6 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है. अब इन नंबर्स को भी आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. 4 कैन बी डिवाइडेड एज 4 by 2, 4 by 3, 4 by 4 जो उसका सम आएगा उसको चेक करना 4 से ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है. इस तरह से हम डिवाइड करेंगे. Now let's directly do the code for this. So for code, I'll write directly optimizer code, memorization code. Okay. So for memorization, what I have to do is I have to create a DP. You all know about this. DP of n plus 1 for is or initialize with -1. Now we'll return solve function. In solve function, what I'll pass n comma DP. So now let's create the solve function. Int solve. In solve function, I will pass n comma vector of int dp. Now what I will do, I'll initialize a equals to n by 2, int b equals to n by 3, int c equals to n by 4. Why I have initialized this? Because I have to divide this in n by 2, n by 3, n by 4. Now I will check if a plus b plus c is the sum of these three, like less than equals to, the sum of these three is less than equals to n है. अगर मेरा सम जो है वो लेस देन इक्वल टू एन आ रहा है तो मतलब क्या फायदा हुआ तुम्हारा डिवाइड करने का अगर लेस देन एन आ रहा है तो. फिर डायरेक्टली मैं लेस देन वो एन वाला प्रिंट ना कर दूंगा क्योंकि मेरे को तो मैक्सिमम सम चाहिए. तुम ए प्लस बी प्लस सी करके भी मैक्सिमम सम फाइंड नहीं कर पा रहे हो, एन से ज़्यादा फाइंड नहीं कर पा रहे हो. तो मैं क्या करूँगा, मैं तो करूँगा ही नहीं, मैं तो डिवाइड ही नहीं करूँगा. आई विल डायरेक्टली रिटर्न माई एन. इन अदरवाइज what I will return is return dp of n equals to. Now I'll do the function call. ny2 की function call जाएगी means ny2 की function call means a की function call because मैं a से इनिशियलाइज कर रखा है ny2 को. आप डायरेक्टली ny2 भी लिख सकते हो यहाँ पे, वो इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर यहाँ पे, ठीक है. प्लस ny3 की फंक्शन कॉल प्लस ny4 की फंक्शन कॉल. So this will be our final code. I hope this will work perfect. So it is working perfect. Let's submit this. Yeah, it is working perfect. So this was the complete code.
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। सो ये डीपी वाला कोड था और बहुत सिंपल कोड था। हमने क्या किया है, जस्ट डीपी क्रिएट किया फॉर मेमोराइजेशन पर्पस। मैंने ये भी इनिशियलाइज नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे एन वाई 2 एन वाई 3 एन वाई 4 लिख दो। नाउ इफ आई विल चेक if the sum of these three numbers is less than equals to n, लेस देन इक्वल टू एन है, तो फिर मेरा डिवाइड करने का पर्पज ही क्या रहा, अगर मैं नंबर से ज्यादा उस नंबर से ज्यादा मैं सम फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। सो इन दिस केस आई विल डायरेक्टली रिटर्न एंड दैट नंबर जो हमें दिया हुआ है। इन अदरवाइज एल्स केस में क्या करेंगे, हम फंक्शन कॉल मारेंगे एन वाई 2 की, एन वाई 3 की, एन वाई 4 की। सो मैंने वही फंक्शन कॉल मारी है, तो सिंपल कोड डन हो गया, ठीक है। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।